نیوز انسائیڈر کا خاص پروگرام اردو خبرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ. چلیے تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی اور. دلی لال قلعہ بلاسٹ میں ڈاکٹر مظفر راتھر مقرر مجرمہ قرار، عدالت میں حاضری کا حکم جاری. جموں ڈویژن کے سمر زون سکولوں میں سردیوں کی چھٹیوں کا اعلان، فیس وائز چھٹیوں کا حکم نامہ کیا گیا جاری. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سردیوں میں بجلی کا دباؤ بڑھنے اور غلط لوڈ کی وجہ سے ٹرانسفارمر جلنے کی پریشانی کو رکھا عوام کے سامنے، لوگوں سے صحیح بجلی کے استعمال کو بتانے کی کہی بات. سری نگر کے بیمنا میں ایس او جی کا کارڈن اور سرچ آپریشن، 3 افراد کو کیا گیا گرفتار، پوسٹرز کیے گئے برآمد. اخلاق لنچنگ کیس کے حوالے سے ممبر پارلیمنٹ برندا کراٹ کے صدر دروپدی مرمو سے مطالبہ، خط لکھ کر فوری مداخلت کی اپیل. کانگریس رہنما راہل گاندھی کی حیدرآباد میں فٹ بال لیجنڈ لیونل میسی سے ملاقات، میسی کی جانب سے راہل گاندھی کو خاص نمبر 10 کی جرسی دی گئی تحفے میں. کانگریس کی جانب سے منریگا کا نام بدلنے پر سخت ناراضگی کا کیا گیا اظہار، پارٹی نے حکومت پر اصل کام کرنے کے بجائے صرف منصوبوں کے نام بدلنے کا لگایا الزام. بند سیاحتی مقامات کا جائزہ ضروری، انہیں بند رکھنا کشمیر کے لیے غلط پیغام دے رہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا انتظامیہ سے مطالبہ. گلمرگ میں 17 کروڑ سے زائد کے سیاحتی پروجیکٹ عوام کے نام، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گلمرگ میں ایشیا کی سب سے طویل اسکی ڈریگ لفٹ کا کیا افتتاح. پاکستان تحریک انصاف نے نئی 23 رکنی پولیٹیکل کمیٹی کا کیا اعلان، پارٹی کے سابقہ سیکریٹری اکبر ایس بابر نے اسے قانونی خلاف ورزی دیا قرار. یو این ایکسپرٹ کی جانب سے پاکستان سے درخواست کی گئی کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی تنہائی میں قید کی جائے ختم. جموں کشمیر میں سال 2025 کا آخری قومی لوک عدالت، 91,000 سے زائد مقدمات دوستی سے حل. اور محکمہ انکم ٹیکس کی جانب سے غلط ڈونیشن اور جھوٹی ٹیکس چھوٹ کے دعووں پر سخت نظر، SMS اور ای میل کے ذریعے الرٹ کیے گئے جاری. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلوبل انوویشنز کنسلٹنسی نے، جو کہ تعلیم کے لیے وادی کا بھروسے مند برانڈ ہے. اسٹار ہاسپٹل صنعت نگر سری نگر نے، جہاں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہر مرض کا شفا بخش علاج کرتے ہیں. سینسو گیزر، جو کہ سردی کے موسم میں گرم پانی کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کا بھروسے مند برانڈ ہے. سری نگر کی NIA عدالت نے لال قلعے کے قریب کار دھماکے میں ملزم ڈاکٹر مظفر احمد راتھر کو مقرر مجرمہ قرار دے دیا ہے. یہ فیصلہ اکتوبر میں بے نقاب ہونے والے وائٹ کالر دہشت گردی نیٹ ورک کے سلسلے میں لیا گیا. عدالت کی طرف سے جاری اشتہار قاضی گنڈ میں ڈاکٹر راتھر کے گھر پر چپکایا گیا ہے اور انہیں 28 جنوری 2026 کو صبح 10 بجے عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. اداروں کے مطابق ہی ڈاکٹر مظفر راتھر افغانستان میں موجود ہونے کا شبہ ہے، جب ان کے بھائی ڈاکٹر عدیل احمد راتھر کو پہلے ہی اتر پردیش سے گرفتار کیا جا چکا ہے. یہ پورا نیٹ ورک سری نگر کے نوگام علاقے میں دھمکی بھرے پوسٹر سے شروع ہوا. اس کی جانچ کے بعد یہ سب سامنے آیا، جو کہ بعد میں فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی تک پہنچ گیا. اس سلسلے میں 2 ڈاکٹرز گرفتار ہوئے اور نومبر میں بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد بھی ضبط کیا گیا. تحقیقات کے مطابق یہ 3 ڈاکٹر کا ایک کور گروپ اس نیٹ ورک کو چلا رہا تھا. سیکشن 84 کے تحت فرار ملزم کو مقرر مجرمہ قرار دینے کے لیے عام اعلان، گھر اور عدالت پر اشتہار لگانا ضروری ہوتا ہے. ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن جموں نے جموں ڈویژن کے سمر زون علاقوں میں تمام سرکاری اور تسلیم شدہ پرائیویٹ اسکولوں کے لیے ونٹر کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے. حکم کے مطابق ہی پری پرائمری سے کلاس 5ویں تک کے بچوں کی چھٹیاں 22 دسمبر 2025 سے 10 جنوری 2026 تک ہوں گی. کلاس 6ویں سے 8ویں تک کے طلبہ 26 دسمبر سے 10 جنوری تک چھٹیوں پر رہیں گے، جبکہ کلاس 9ویں سے 12ویں تک کے طلبہ کے لیے ونٹر بریک 29 دسمبر سے 10 جنوری 2026 تک رکھی گئی ہے. آرڈر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چھٹیوں کے دوران ہی ٹیچنگ سٹاف ضرورت پڑنے پر تعلیمی کام کے لیے دستیاب رہے گا اور تمام ٹیچرز 10 جنوری 2026 کو اپنے اسکول رپورٹ کریں گے. وہیں ڈائریکٹوریٹ اسکول ایجوکیشن جموں نے ہدایات دی ہے کہ اگر کسی نے اس اسکیڈول کی خلاف ورزی کی تو قانون کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی.
बिजली के मसले पर बात करते हुए जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि लोगों को अपना बिजली का लोड ईमानदारी से जाहिर करना चाहिए, क्योंकि बिना मीटर वाले इलाकों में ज्यादा लोड की वजह से ट्रांसफार्मर्स जल रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि लोड शेडिंग मुकर्रर स्केड्यूल के मुताबिक हो रही है और हुकूमत डिमांड और सप्लाई के दरमियान तवाजुन कायम करने की पूरी कोशिश कर रही है। वज़ीर आला ने कहा है कि सर्दियों के दौरान ही बिजली के अचानक कट लगना अक्सर ओवरलोडिंग और टेक्निकल खराबी की वजह से हो रहा है, जबकि निजाम को बेहतर बनाने और बढ़ती हुई जरूरत पूरी करने के लिए काम जारी है। श्रीनगर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और पुलिस स्टेशन बेमना ने सेंट्रल कश्मीर के बेमना इलाके के डल कॉलोनी में कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस जराये के मुताबिक तलाशी के वक्त गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से पोस्टर बरामद हुए हैं। इस मामले में पुलिस स्टेशन बेमना में गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतल्लिक कानून के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदा अफराद की पहचान उवैस मुबारक इत्तू रहने वाले शोपियां के और हिलाल अहमद हजम और जावेद अहमद हजम दोनों ही चाडूरा ब्रेनवार के रहने वाले बताए जा रही हैं। पुलिस ने कहा है कि मामले की मजीद तहकीकात जारी है। सीपीआईएम की सीनियर रहनुमा और साबका राज्यसभा मेंबर बृंदा कराट की जानिब से मोहम्मद इखलाक लिंचिंग केस के हवाले से सदर द्रौपदी मुर्मू को खत लिखकर फौरी मुदाखलत की अपील की गई। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत अदालती अमल को कमजोर करने के लिए साल 2015 के इस कत्ल के मुकदमे को वापस लेना चाहती है और इसलिए गवर्नर से इसमें लिखित इजाजत भी हासिल कर ली गई है। कराट ने याद दिलाया है कि बिशादा गांव में सितंबर 2015 को इखलाक को भीड़ ने कत्ल कर दिया था, जब उनके बेटे दानिश को शदीद जख्मी कर दिया था। उन्होंने कहा है कि केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, ट्रायल शुरू हो चुका है और साल 2022 में बेटी ने अदालत के सामने तमाम मुल्जिमान की पहचान भी की थी, जबकि मजीद गवाहों के बयान बाकी हैं। इसके बावजूद हुकूमत ने केस वापस लेने के लिए अदालत में हल्फनामा दाखिल कर दिया, जिसे बृंदा कराट ने गलत गैर। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने हैदराबाद में अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी और वर्ल्ड कप विनर लियोनेल मेसी से मुलाकात की है। मेसी, जो कि गोट टूर के सिलसिले में हिंदुस्तान आए हुए हैं, उन्होंने राहुल गांधी को खास नंबर 10 जर्सी तोहफे में दी है। राहुल गांधी ने इस मुलाकात की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मेसी को अजीम फुटबॉल खिलाड़ी करार दिया। कांग्रेस पार्टी ने भी बताया है कि मेसी ने राहुल गांधी को यादगारी जर्सी पेश की है और इस मौके पर राहुल गांधी ने मेसी को भी एक निशानी दी है। मेसी ने हैदराबाद पहुंचकर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम उप्पल में शनाख्ती हाजिरी दी, बच्चों के साथ फुटबॉल खेला और फैंस को हाथ हिलाकर सलाम किया। इससे पहले कोलकाता में उनकी मुख्तसर हाजिरी पर तनकीद भी हुई है, जबकि हैदराबाद में उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला और दूसरे अहम अफराद से भी मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी ने मरकजी हुकूमत के मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखने के फैसले पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने कहा है कि हुकूमत असल काम करने के बजाय सिर्फ मंसूबों के नाम बदलने और नए रंग देने में माहिर है और इस कदम से महात्मा गांधी की पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया है, जब महात्मा गांधी के नाम से कोई मसला नहीं है तो फिर नाम बदलने की आखिर जरूरत क्यों पेश आई। कांग्रेस के दूसरे सीनियर रहनुमा केसी वेणुगोपाल ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आज़म मोदी पहले ही इस स्कीम को नाकाम करार देते रहे और अब उसी मंसूबे का क्रेडिट लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ नाम बदलना एक दिखावटी कदम है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि मजदूर ज्यादा उज्रत और पैसों की देर से अदायगी पर परेशान है और हर साल बजट भी कम होता जा रहा है। हुकूमत ने इस फैसले के साथ काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने का ऐलान जरूर किया, मगर कांग्रेस का यह कहना है कि अवाम जानती है कि यह मंसूबा साल 2005 में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के दौर में मुल्क के हर गांव तक पहुंचाया गया था। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में बंद किए गए सयाहती मकामात को दोबारा खोला जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें बंद रखना अवाम और सयाहों को गलत पैगाम दे रहा है। गुलमर्ग में एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल इतनी खराब नहीं है कि सयाहत पर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने याद दिलाया है कि साल 1996 में मुश्किल हालात के बावजूद सयाहती मकामात बंद नहीं किए गए थे। वज़ीर आला ने कहा है कि बंदिशों से होटल वालों, टूर ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स और हजारों घरानों के रोजगार मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि गुलमर्ग, पहलगाम और दूध पथरी जैसे अहम मकामात को खोलकर भरोसा बहाल किया जाए और मायशत को सहारा दिया जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गुलमर्ग और करीबी इलाकों में 17 करोड़ रुपए से ज्यादा के अहम सयाहती बुनियादी मंसूबे अवाम के लिए वक्फ कर दिए। उन्होंने कोंगडोरी में एशिया के सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट, पानी के जखायर की हिफाजती तामीर और अपरबात में भी घूमता हुआ कॉन्फ्रेंस हॉल का इफ्तिताह किया। इसके अलावा गुलमर्ग में गोल्फ कोर्स की फेंसिंग का बुनियादी पत्थर रखा गया, जबकि ऑनलाइन जरिए से गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस हट नंबर 2 की दोबारा तामीर,
आलमबाल रोड पर देवरी पथ और नया कार पार्किंग मंसूबा भी शामिल है। साथ ही इंटीग्रेटेड स्की ट्रेनिंग और एडवेंचर टूरिज्म सेंटर का इफ्तिताह और स्की ट्रेनिंग कोर्सेज का आगाज किया गया। वज़ीर आला ने कहा है कि गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर की सयाहत का ताज है और इन मंसूबों से सर्दी की सयाहत, नौजवानों को रोजगार और गुलमर्ग को आलमी सतह पर फरोग मिलेगा, जबकि कुदरती हुस्न और माहौलियात का भी ख्याल रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी पॉलिटिकल कमेटी दोबारा तैयार करके 23 रकुन पर मबनी नया फोरम बनाया है, जो कि पार्टी के तमाम फैसलों और फंक्शंस के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी होगा। नई कमेटी में पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, फिरदौस शमीम नकवी, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और दूसरे सीनियर रहनुमा भी शामिल हैं। इस कमेटी का काम पार्लिमानी पार्टीज के लिए पॉलिसी तैयार करना भी होगा। नेशनल असेंबली, सेनेट और तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज, गिलगित बल्तिस्तान और पीओके शामिल रहेगा। वक्त के साथ पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर और फॉर्मर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अकबर एस बाबर ने इस नई कमेटी को गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी लगाया है। बाबर ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि पार्टी के ऑफिस और बैंक अकाउंट्स को तब तक फ्रीज कर दिया जाए जब तक कि कानूनी इलेक्शंस ना हो जाएं। यूनाइटेड नेशंस की एक्सपर्ट एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के डिटेंशन के इनह्यूमेन और बेइज्जत हालात को फौरन दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा है कि 15 दिन से ज्यादा की तन्हाई में कैद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के कानून की खिलाफ वर्जी है और ये जहनी टॉर्चर के बराबर है। इमरान खान को अगस्त 2023 से अदियाला जेल में रखा गया है, जहां उन्हें आउटडोर एक्टिविटी, दूसरे कैदियों से मुलाकात और कम्युनल प्रेयर्स की इजाजत नहीं दी गई है और कोर्ट की मंजूरी से होने वाली मुलाकातें भी अक्सर रोक दी जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मोहम्मद शोएब अफरीदी ने भी इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी के साथ बदसलूकी का इल्जाम लगाया है, जबकि उन्हें 10वीं दफा भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल अफेयर्स एडवाइजर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अफरीदी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट की वजह से मुलाकात से रोका गया। जहां इमरान खान पर नवंबर 26 के प्रोटेस्ट जैसे इवेंट का प्लान बनाने का इल्जाम था, वहीं यूएन एक्सपर्ट ने पाकिस्तान हुकूमत से इस मामले को उठाया है और आगे भी डेवलपमेंट पर नजर रखी गई है। जम्मू और कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में साल 2025 का आखिरी कौमी लोक अदालत आज कामयाबी के साथ मुनक्कद हुआ, जो कि चीफ जस्टिस अरुण पल्ली की सरपरस्ती, जस्टिस संजीव कुमार की क़ियादत और जस्टिस विनोद चैटर्जी कोल की रहनुमाई में हुआ। इस लोक अदालत का मकसद अवाम को सस्ती, तेज और रजामंदी पर मबनी इंसाफ फराहम करना था। इसमें मोटर हादसा मुआवजा, घरेलू झगड़े, चेक बाउंस, कर्ज वसूली, तिजारती मुकदमात और हल्के जुर्म शामिल रहे। लोक अदालत से पहले मशावराती बैठकें, प्री काउंसलिंग और ऑनलाइन नशिस्तें भी की गई थी, ताकि लोगों को रजामंदी पर मसला हल करने का मौका मिल सके। पूरे यूटी में 186 बेंचेस के जरिए 1,05,784 मुकदमात सुने गए, जिनमें से 91,750 मुकदमात दोस्ती और रजामंदी से हल हो गए और तकरीबन 76 करोड़ 65 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मुआवजा और सेटलमेंट की सूरत में अदा की गई। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने वादा दोहराया है कि वो मुस्तकबिल में भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को मजबूत बनाते हुए खासतौर पर गरीब और कमजोर तबकों तक इंसाफ पहुंचाते रहेंगे। जबकि मेंबर सेक्रेटरी ने जुडिशरी, इंतजामिया, वकीलों और तमाम मुतल्लिका अफराद का शुक्रिया अदा किया। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गलत टैक्स छूट के दावे करने वाले टैक्स पेयर्स को एसएमएस और ईमेल के जरिए इंतबाह देना शुरू कर दिया। फाइनेंस वजारत के मुताबिक सीबीडीटी की जांच में पता चला है कि कई लोगों ने गैर तस्लीम शुदा सियासी जमातों और खैराती इदारों के नाम पर झूठी डोनेशंस दिखाकर टैक्स कम और गलत रिफंड हासिल किए हैं। इस पर 12 दिसंबर 2025 से ही नज मुहिम शुरू कर दी गई है। इसके तहत टैक्स पेयर्स को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ठीक करने और गलत दावे वापस लेने का मौका दिया जा रहा है। सीबीडीटी ने यह कहा है कि कई रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज असल में ना तो काम कर रही हैं और ना ही उनका कोई भी सियासी किरदार है, बल्कि इनके जरिए पैसों की गलत लेन देन और झूठी रसीदें दी जा रही हैं। जांच के बाद कई लोग और कंपनीज के झूठे डोनेशन और सीएसआर के सबूत भी मिले हैं। सीबीडीटी के मुताबिक कई टैक्स पेयर्स पर शबा है कि वो मशकूक इदारों को डोनेशन दिखा रही हैं, जबकि कई लोगों ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न दोबारा दाखिल करके गलतियां दुरुस्त भी कर ली हैं। डिपार्टमेंट ने सब टैक्स पेयर्स को मशवरा दिया है कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ठीक दर्ज कराएं, ताकि कोई भी जरूरी इत्तला मिस ना हो। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।